understand why I'm do it saying this. together. You're arriving at a deal. Both of you You together. are not making a deal. You can make the first offer if you want. I mean, Offer not बनाने really हैं. offer. You can make the first offer, which I think everybody should. By the way, ये भी एक trick है. Whoever makes the first offer always gets a better bargain. if we all Always remember, gets a Better bargain of the deal. हम Always. राहुल जैन की सर एल्यूमिनाई थी, हाँ जी. उसमें ज्योति लेबोरेटरीज के सीईओ एमडी आए हुए थे. हाँ जी. एंड दे बॉट अ ब्रांड, आई डोंट रिमेम्बर दैट ब्रांड, काफ़ी Henkel हो गया तो डिटर्जेंट्स ब्रांड था. एंड ही Henko या उसकी हाँ Henkel. हाँ उन्होंने यही बोला था कि वो दैट कंपनी वाज स्ट्रगलिंग. मैंने वो देखा, आई अप्रोच देम एंड आई पुट देम. 2 बार गया, 4 बार गया, और फिर उसके बाद आई बॉट दैट डील. Yeah. उन्होंने उसको बेचना नहीं था, हाँ. उनको खरीदना नहीं था, बट ही You have to create a situation. create a situation. Right? You have to co-create it Henkel. together, and it has to be done with a lot of empathy and respect. It should not be done in an intimidating way. That I'll make you an offer you can't refuse. No, that works well in movies. In reality, when because remember, it's not about signing the dotted line. असली काम तो deal sign करने के बाद start होना है, which is the actual integration, which is where people fail. People don't fail in signing the deal, they fail after that. So it always has to be with a lot of respect and not thinking that this is the end of the game. End of the game is not signing the deal. It's making sure that after the deal, two companies are winning who got together. Both are getting the benefits of this deal. कभी भी ये नहीं लगना चाहिए एक पार्टी का नुकसान हो गया. So Iger believes in forming personal relationships while negotiating. As previously observed during his negotiations with Steve Jobs, George Lucas, Stan Lee, Rupert Murdoch, it was all about relationships. Trust me on that. अमीर आदमी तो और भी बहुत सारे हैं, but दोस्त कितने हैं? Right? According to him, negotiations must be done with the desired outcome in mind. Desired outcome clear. Ensuring clear and effective communication without letting ego muddy the waters. Relationship का मतलब ये नहीं है कि आप काफी chillax हो जाओ in your deal making. You still need to be very honest about what your expectations are. You have to be very assertive. The fact that you're friends just has more trust in the game. It's not a compromise for the terms. कभी भी फ्रेंडशिप को नेगोशिएशन ऑफ टर्म्स में नहीं यूज करना है या यूज होने देना है. बट व्हाट फ्रेंडशिप माइट डू इज आई एम विलिंग टू ट्रस्ट यू टू गेट इनटू अ डील विद यू. Right? So he keeps saying this, my style is to be expedient. That means very quick. To do that, I put things on the table quickly, directly, and candidly. Quickly, directly, and candidly, with much frankness as required. मतलब इधर उधर की बातें नहीं घुमानी. अगर हम साथ में काम करेंगे तो ये होगा, ये हो. Okay, fine. Storytelling is okay, and you can only be quick, direct, and candid with a person if he's your friend. Otherwise, it's very tough. But candid explain करें. फ्रैंक होता है ना, जैसे फ्रैंकली मैं बताऊं आपको, मैं किसके साथ फ्रैंक हूँ? अपने दोस्तों के साथ ही फ्रैंक हो सकता हूँ. Where you don't have the fear of being judged. हाँ, Where? no judgments. He believes if you want to do the deal, get at the essence of what you want to achieve right away. And in his 14 deals, results often came down to his relationship with the one person on the other side. One person. In his 14 deals, the big deals, छोटे मोटे transaction छोड़ दो. In his 14 deals,
results often came down to his relationship with one person on the other side. And being open and candid made that a strong relationship and a quick negotiation. Most of the deals he's part of are team deals. They're not multi-party but team deals. A lot of people are involved. But there's one person on the other side and one person on this side who need to really trust each other. Like the best of buddies. तब जाके कॉम्प्लेक्स डील्स फ्रक्टिफाई हो पाती है क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट आएंगे डील में 100% आएंगे. And if I recall all my amazing deals, I can always think of this one person who was trusting me and I was trusting that person. हर बारी कि we are going to take care of each other's needs. हर बारी एक डील में एक जना होता है आपकी कंपनी, आपके बायर और आपकी कंपनी के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट आया तो आप उसको फोन करते हैं, भाई उसको एक बारी बात करके हाँ. जो खत्म कर रही है, जिसको आप सबसे ज्यादा ये ट्रस्ट कर टिकट पाते रेज हो. हुई है, इसको जरा एड्रेस करो. आपको पता था कि ये बंदा डील कर सकता है. हाँ. अगर वो नहीं है पार्टी में दूसरी साइड तो कोशिश करो कि वो पार्टी बन जाए. मतलब यू ट्राई टू बिल्ड वर्क टुवर्ड्स इट. इट्स वेरी टफ. तो इसके लिए आपको रिलेशनशिप बिल्डिंग भी सीखनी पड़ेगी ना. हाँ जी. I agree to the fact that you said, but sometimes it happens is that you are just on the part of creating that relationship, but the other person has foreseen his advantage in that. कि what is in there for me? मैं तेरे साथ ये कर रहा हूँ. तेरा वो product- ट्रांजैक्शनल हो रहा है फिर वो. Okay. दूसरी साइड से ट्रांजैक्शनल है. वो रिलेशनशिप नहीं बिल्ड करना चाहता. वो रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहता है, बट ही आल्सो वांट्स कि अच्छा मैं करता हूँ, मेरा भी तो कुछ देखना. दैट इज ट्रांजैक्शनल. And we want to cut it there. ट्रस्ट बिल्डिंग goes beyond transactions. आप अपनी आंख बंद करके याद करो ऐसे कितने लोग हैं जिनको आप क्या ये ट्रस्ट टर्म करते सी हमारे? हो और वो आपको ट्रस्ट करते हैं. अरे भाई क्या उन्होंने हमारे क्वार्टर में टर्म सी है तो फिर उसमें transaction आप उनको आप उनसे पूछ के सारी टर्म्स हैं. Capability is still a precondition for a deal. अरे उनसे पूछ के टर्म्स You may be having a great relationship with someone, बस फिर बात but maybe that person is not हम capable of doing a deal with. That's okay. That's a separate issue. In a retail scenario like this, I mean, this speed of making a relationship, you may not have that much time. कि रिलेशनशिप बनाने में टाइम लगता है, बट उसके बाद द स्पीड इज ऑफ एसेंस. एक्चुअली क्या चक्कर है, जिन लोगों को आप ट्रस्ट करते हो और जो लोग आपको ट्रस्ट करते हैं, सिर्फ उन लोगों के साथ आप क्विकली बात कर सकते हो, डायरेक्टली कर सकते हो, कैंडिडली. जैसे जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो दुबई में रहता है. एक बार मैंने उसे फोन करके बोला, कुछ समझाना ही नहीं पड़ा, यार ये एक स्टार्टअप आ रही है, उसमें मैं को फाउंडर हूँ, एक अच्छी डील आई है, तू भी इन्वेस्ट कर ले. तो उसने पता क्या बोला, मिनिमम कितने हैं, अगर तू कर रहा है तो ठीक ही कर रहा होगा. राइट. फटाफट बात कर पाते हो. यही होता है. हमें प्रशांत जी जब कोई ऑफर करते हैं ना, पता है कि he is the master of You subject. trust him, right? And Yeah, if he is saying so, exactly. So this, yeah. डील के लिए नहीं बोलता. हाँ वही तो उनको भी पता है. So this is where it becomes so important. अच्छा, अब क्वेश्चन आ जाता है कि हर किसी के साथ थोड़ी रिलेशनशिप बनाने जाओगे, तो पहले डील ढूंढ लो, फिर उसमें हाथ में ढूंढ लो, एंड सेट अ टाइमलाइन. यू नो, सो एंड डोंट लेट इट बी सो ट्रांजैक्शनल कि सिर्फ डील करने के लिए दोस्ती हो रही है. एंड मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, अगर आपकी दोस्ती नहीं हो पाई ना, तो वैसे डील फेल है, साइन होने के बाद भी फेल है. बिकॉज वैल्यूज ही नहीं मैच हुई. दोस्ती किसके साथ होती है आप बताओ? आपके जो सबसे अच्छे दोस्त हैं वो वही है ना जिनके साथ वैल्यूज मैच हो जाती हैं. भाई अगर बॉब आइगर की वैल्यू स्टीव जॉब्स के साथ मैच ही नहीं होती, देयर वाज नो प्लेस फॉर अ डील. Two of the most important people in their respective companies don't match in values. जब जेफ बेजोस ने Zappos खरीदी थी, so Amazon का इकोसिस्टम बहुत अलग था, hyper aggressive. Zappos का culture was like the winning culture kinds, so a lot of focus on humanity and happiness and things like that.
उसने खरीदने के टाइम कहा था कि दिस इज़ द बेस्ट कंपनी जिसका मतलब इससे बेटर कोई कंपनी का कल्चर नहीं है. इसको अक्वायर करने के बाद ना आप छेड़ेंगे भी नहीं इसको. आई जस्ट स्टे अवे फ्रॉम इट. आई डोंट इवन वांट टू कम क्लोज टू इट कि मैं इसके पास आया तो इसको डिस्ट्रॉय करता हूँ. दैट इज इंटेलिजेंट. नाउ Jeff Bezos is again a deal maker, so he knows this. So when he builds his friendship with Tony Hsieh, जो उसका फाउंडर था, तो उसने उसको बोला मुझे पता है तेरे को क्या चाहिए. पैसे तेरे को चाहिए आज की डेट में ग्रो करने के लिए, नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए, लेकिन तू ये भी चाहता है कि तेरी कंपनी को कोई डिस्टर्ब ना करे. मैं दोनों देने को तैयार हूँ, फ्रीडम एंड मनी. नाउ आर यू इंटरेस्टेड? यस. मैं एक्चुअली सर यही बोलना चाह रहा था कि दिस इज देन ऑफर यू कैन नॉट रिफ्यूज. तो उसने दोनों उसकी शू में जाके उसकी प्रॉब्लम को पूरा एसेस करके और तब बोला कि यार ताकि व्हेन यू क्रिएट अ विन-विन सिचुएशन फॉर एवरीवन. यस, इंटीग्रेटिव. हाँ, इंटीग्रेटिव हो गया. यू आर राइट. इट इज दैट काइंड ऑफ एन ऑफर. बट अगेन if I don't trust Bezos and he makes me an offer I can't refuse, तो आई नो दैट कि अगर मैंने ऑफर ले ली तो बाद में हो सकता है कि ये जो बोल रहा है वो फ्रीडम छीन ले. एक एग्जांपल जो अपन ले रहे हैं ना सर, ये एक बड़ा पर्टिकुलर हो सकता है क्योंकि बिकॉज ही हैज टू मेंटेन दैट रिलेशनशिप इन दैट, राइट? इफ यू आर सेलिंग अ प्रोडक्ट डजंट मीन कि आप उस जो बंदे को मैं नहीं भी जानता, इफ आई कैन ट्रस्ट द प्रोडक्ट और अ ब्रांड और एनीथिंग लाइक, तो मे बी आई विल नॉट सी इट इन दैट वे कि मेरे को रिलेशनशिप का क्या आगे करना है भाई. अगर मे बी सपोज मैंने एक सामान खरीदने गया, इट मे नॉट बी दैट कॉम्प्लेक्स अ ट्रांजैक्शन. मतलब सिंपल चीज़ों के लिए आपको रिलेशनशिप नहीं बिल्ड करनी होती. अगर कोई काम आसान है, डिसीजन मेकिंग ईजी है ना, वो 10-15 मिनट आधा घंटा बात करने से काम हो जाता है. उसमें क्या नेगोशिएशन, क्या है? स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस है. कोई अलग से थोड़ी एग्रीमेंट बनाएंगे उसके लिए. सो आई थिंक वेयर यू आर इन योर माइंड स्ट्रगलिंग इज दिस, ये when does a transaction become a deal? Exactly. Right. So ये this is zero arrow है, ये complexity का arrow है. Right. As a transaction becomes more complex, it gets converted into a deal. That is when negotiation is more useful. Otherwise, you're right. ऐसे थोड़ी कि हर छोटी-छोटी चीज़ करने के लिए negotiation करने बैठे हैं. उसको transaction में रहना. हाँ, जैसे दुकानों में लिखा होता है ना फिक्स प्राइस, कोई नेगोशिएशन नहीं करनी है, लेना लोन लेना ना, बात करो. कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन है ही नहीं यार. बिस्कुट खरीदना है, इसमें क्या तो मैं नेगोशिएट करूँगा यार, बल्क पैकेट दे दो, ये दे दो, वो दे दो, पॉइंट इन. बट वही शॉपकीपर जब पीछे से डील लेने करता है तो वो डील हो गया deal वो. अब वो कॉम्प्लेक्स होती जा रही है. राइट. लाइक कृष्णा एंड ऑल दैट जो बड़े हैं सबका हाँ. फिक्स प्राइस है, हाँ. बट वो पीछे से डील उठाते हैं और आगे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं. डीमार्ट को अगर किसी नए ब्रांड को लिस्ट करना है तो प्रॉपर नेगोशिएशन टेबल पे बैठा जाएगा, प्रॉपर डील मेकिंग होगी, मल्टीपल चीज़ें डिस्कस होंगी, उसके बाद जाके डील साइन होगी. Okay, so this is the story. So while acquiring Pixar, Iger decided to adopt an honest and authentic approach. He clearly mentioned his plans to Steve Jobs and explained why it is essential for Disney to do so. मतलब कोई उसने ये नहीं किया कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा. उसने कहा देखो भाई, डिज्नी में मेरा एजेंडा ही यही है, मुझे लाया गया है आपको अक्वायर करने के लिए. यू विल बी माई फर्स्ट एक्विजिशन. अपना इंटेंट क्लियर कर दिया. दोस्त वो पहले से थे तभी उसको लाया गया. प्लीज अंडरस्टैंड, दोस्ती पहले से थी. ऐसा नहीं कि डिज्नी में आने के बाद दोस्ती बनानी शुरू की उसने. और अगर डिज्नी को ये काम करना आता अपने आप, अपने बलबूते पे, तो वो कर लेता अब तक. नहीं कर पाएगा, इसलिए इसको लेके आए. In all his acquisitions, including Pixar, Iger developed trust with those companies, ensuring that it would serve them well if they sold to Disney. And by adopting an authentic approach and being as candid as possible, he developed a relationship with all of them, even if that was over a relatively brief period of time. Relationship बनाने का मतलब क्या है? Trust build करना एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को जानना, पहचानना, उनकी values के साथ align करना.
जैसे आप किसी आज की डेट में किसी नए इंसान से मिलते हो, यू आर अ मेंबर ऑफ EU आई बिलीव, इतना बड़ा ग्रुप है, इतने सारे लोग, यू मीट समवन, पहली बार मिलते हो हाय हेलो होती है, दूसरी बार ड्रिंक पे बैठते हो, एक दूसरे को जानना शुरू करते हो, थर्ड या फोर्थ बात के बाद लगता है यार धंधा भी हो सकता है साथ में, डील मेकिंग की बात स्टार्ट, बिकॉज नाउ यू स्टार्ट ट्रस्टिंग दैट पर्सन एंड वाइस वर्सा. Of course, they've grown really well, and he has 3 tips for successful negotiations. Be as candid as you can. जितने frank आप हो सकते हो, जितनी सीधी सीधी बात करोगे और easy तरीके से करोगे, जितने upfront हो सकते हो about your needs, it saves time, but also provides the other party the opportunity to outline what they want to gain. Problem कहाँ आती है डील मेकिंग में? जब सामने वाली पार्टी आधे से ज़्यादा समय इसमें निकाल देती है कि यार इसका इंटेंट क्या है इस बंदे का, ये करना क्यों चाहता है, वो क्लियर करो पहले. वो क्लियर ही नहीं हो पाता है क्योंकि वो सामने वाला बताता नहीं है. उस वजह से ट्रस्ट एस्टेब्लिश करने में ज़्यादा समय लगता है. तो ये जहाँ भी जाता है अपना इंटेंट बता देता है. So what would he have done? He would have gone, Steve, how are you doing? We haven't met in a long time. देख भाई तेरे को तो पता है मैंने डिज्नी क्यों ज्वाइन किया, क्यों किया, तू जानता ही, तूने वापस एप्पल चले जाना है, पिक्सर मैं संभाल लेता हूँ. साफ साफ बात, मुझे लाया इसीलिए गया. तो क्या हुआ कि अब ना इंटेंट क्लियर है, इंटेंट में धोखा नहीं है. आई एम अ लिटिल बिट मोर कंफर्टेबल मीटिंग एंड हैविंग अ चैट इफ इट्स फिजिबल. बी ऑनेस्ट एंड ऑथेंटिक. कोई एम्बिग्यूटी नहीं, इधर उधर की बातें नहीं घुमानी. कीप योर आइज ऑन द प्राइज, वेरी इंपॉर्टेंट. भाई जो पर्पस ऑफ द डील है वापस वहां आना जरूरी है. मैं इसलिए डील नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरी आपके साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस. मैं इसलिए डील कर रहा हूँ क्योंकि ये डील मेरी कंपनी के लिए बहुत जरूरी है, बट मैं आपके साथ कर पा रहा हूँ क्योंकि रिलेशनशिप आपके साथ बहुत अच्छी है. आर वी क्लियर? सो आई एम नॉट डूइंग द डील बिकॉज ऑफ माई रिलेशनशिप विद यू. आई एम नॉट डूइंग यू एनी फेवर, यू आर नॉट डूइंग मी एनी फेवर्स. I'm doing the deal because the deal is necessary for my company and for your company. But we are able to make progress because we trust each other, because we have a relationship. On the same page? Great. Any confusions on this topic? So you can take away whatever you want, any one thing which you are ready to take away. Can you write down only for yourself, not to tell me? कोई एक चीज जो आप इस सेशन से लेके जाना चाहें. Creating options. Okay? Maybe that's where you feel यार ये मैं नहीं कर रहा, वही नहीं लिखो करना शुरू कर दो. ये तो बहुत क्विक विन वाला मेथड है, बड़ी जल्दी विन्स आती हैं इसमें. Deals progresses fast through trust. Trust. So trust building with the person you want to deal with. Anybody else? Any other takeaways? Be candid and communication. I mean, for you, right? Yeah. I mean, I'm not asking for takeaways for other people. नहीं for me only. Intent sharing. हाँ, इंटेंट स्टार्टिंग में शेयर कर दो. ट्रस्ट बिल्ड करने में कम समय लगेगा. डील होने में ज़्यादा समय कब लगता है? जब ट्रस्ट बिल्ड होने में ज़्यादा समय लगता है. This is one thing that's going on. Dilemma चल रहा है. One is that being very authentic, being very,
upfront and intentional. दूसरा है diplomatic कि यार अपने को ना बड़ा diplomatically ये deal handle करनी है. So it's like a it could also go the other way. Being straightforward is better Being straightforward is better. if you want to be trusted. And you can recall all your deals. Because remember, actually पता क्या है? हम सोचते हैं कि हमारा end goal deal sign करना. That is where the entire game goes corrupt. The first goal is to sign a deal. End goal is to make sure that कि deal में जो हुआ है, लिखा गया है, वो दोनों parties को जो चाह रहे थे वो मिल रहा है. तो उसमें अगर डिप्लोमेटिक प्ले करोगे तो दिक्कत नहीं. अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया ना तो डील के बाद भी सेटिस्फैक्शन नहीं, तो डील तक तो सेटिस्फैक्शन होगी, उसके बाद नहीं होगी. In fact, you shared that real game starts when the deal happens. After the deal. Exactly. The real fun starts, or the real challenges after the deal is signed. If you think of deals like that, तो आप रियलाइज करोगे कि you become more powerful in deal making. You become more confident. You become more straightforward. रिलेशनशिप भी अच्छा बिल्ड होगा. अच्छा बन, बिकॉज अब सब कुछ साफ साफ बात हो रही होगी ना. देखो कागज साइन करने से पहले, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, इंडिया में तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है डिप्लोमेसी की. 99% of relationships suffer because of not fulfilling each other's commitments. Right? कि कागज पे कुछ लिखा गया है, पैसे टाइम पे आते नहीं है. अगर उसमें ये लिखा है कि बिल रेज होगा तो बिल ही नहीं रेज होने देते. सो क्या है, दिस इज नॉट अ रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट. सिर्फ साइन करने के लिए पेपर साइन हो रहे हैं. डिप्लोमेसी ये है कि हाँ जी सर आप जो बोलोगे वही कर देंगे. आप साइन तो करो. राइट. स्ट्रेट फॉरवर्डनेस ये है कि नहीं सर हमारे यहाँ पेमेंट 90 डेज में आती है, 90 में ही आएगी, लेकिन पक्की बात है कि 90th डे पे आ जाएगी. एंड आई प्रॉमिस यू विल फुलफिल दिस कमिटमेंट. ट्रस्ट मी, पीपल विल एक्सेप्ट योर टर्म्स ऑफ 90 डेज प्रोवाइडेड यू गिव देम द कॉन्फिडेंस दैट वट एवर कम मे, रेन और सनशाइन, 90th डे पेमेंट आ जाएगी अपने आप बिना मांगे. पीपल विल अग्री टू योर टफ टर्म्स if you're honest and you fulfill your commitments. कुछ कंपनीज होती हैं ऐसी जो करती हैं तो हमें अच्छा लगता है उनसे बार बार बिजनेस करना. हाँ मज़ा आता है उनके साथ काम. मजा आता है. हमें बड़े गिने चुने होते हैं. 46 डेज फोन नहीं करना पड़ता. हाँ नहीं. I mean all my most favorite clients are not the ones who pay me the maximum money. They are the ones who always pay on time. Whatever has been committed they fulfill. तो कुछ तो ऐसे हैं जो बिल नहीं रेज किया तो फ़ोन करके रिमाइंड कराते हैं आपका बिल नहीं आया सर. हमारे सिस्टम में तो आपकी पेमेंट जानी थी. सो देयर आर पीपल लाइक दैट. एनीवे, ओके, सो वी हैव वन मोर टॉपिक टू कवर. वी रियली गो स्लो आई बिलीव. आई थिंक ये फेस टू फेस में काम करना yeah, because there's so much good quality discussion, right, which is necessary. So shall we take a 5-minute break and come back? You guys have time? So The next session next will be next 1 session hour. कर लो सर. 1:30 तक कर लेंगे पर मैक्स. हाँ 1:30 तक हो जाएगा. अभी फ्लो बना हुआ है, निकल जाएगा. वो इतना टफ टॉपिक नहीं है जितना ये वाला था. ठीक है, let's come back in 5 minutes. You all keep taking breaks in between. I think it's important for you. हाँ ठीक है. नहीं